we will see the features of macroeconomics. Already we have completed the microeconomic parts. Okay, last time we did about the what, the definition and the scope of macroeconomy, right बच्चों? तो मालूम हो गया मैक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंस बच्चों. माइक्रो इंडिविजुअल कंसिडर था एंड मैक्रो लार्ज एग्रीगेट. ओके बच्चों, सो लेट्स गेट द फीचर्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स. ओके बच्चों, फर्स्ट पॉइंट द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. व्हेन आई से द वर्ड स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, इमीडिएटली मेरे माइंडसेट में क्या था बच्चों? माइक्रोइकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. सो माइक्रो ओनली स्टडी द इंडिविजुअल पर्टिकुलर्स. What is the definition of particular household, particular commodity, particular individual industry? That is microeconomics. While the macroeconomic, we study the whole, total, all. It covers the whole economy. Okay, now remember. So it study about the aggregate, means the total. Macroeconomic concern about the all the economic things, not the only individual or particular. Okay. So what is given in the textbook? The macroeconomics deal with the study of national economy as a whole economy, whole country or whole world को cover करता है बच्चों. Okay, study about the very large, wide aggregate such as the national, like national output, employment, poverty, inflation. कुछ याद आ रहा है? ये सब microeconomics में क्या था? Ignore था बच्चों. Microeconomics they are not focus about that, but these issues will be concerned. These issues will be studied in macroeconomics. Okay. Poverty, unemployment, income generation, investment, all things will be studied in macroeconomics. That's why we can say macroeconomics study the aggregates as a whole, as a total. Okay, but we can say it study the whole forest, not the tree. Micro में क्या था बच्चों? They not study the whole tree, forest, but they just concern the individual tree. अब macro क्या होगा बच्चों? They are not concerned about the one individual tree. It is concerned about the aggregate. School, I am not focusing on the one particular students. We are focusing about the all. That is macro. जब आप एक particular students का focus करते हो बच्चों, micro. जब overall आप aggregate पे focus करते हो, that is macro. बच्चों, so study about the total output, total employment, aggregate demand, aggregate supply. Aggregate demand मतलब बच्चों, the total demand made by the individual in the country. पूरे इंडिया में कितने के प्रोडक्ट का डिमांड है? एग्रीगेट. how much the total supply made by the all the producer, primary sector, secondary and tertiary. प्राइमरी बच्चों एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्टरी सर्विस सेक्टर. ये सब कितना सप्लाई करता है, ये सब कंसिडर हम लोग करते हैं. माइक्रो में कभी वर्ड बोला था प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टरी? नो. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक having the area of to study the प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्टरी. बच्चों, तो माइक्रो में एक इंडिविजुअल को फोकस करता है, while the macro it study the large. Okay बच्चों, so that is the study of aggregates, right बच्चों. then क्या था? lumping method. it is opposite to slicing method. जब भी याद रखना बच्चों, तो इसको कंपेयर करने का, इससे फायदा क्या होगा आपको? एक डिस्टिंग्विश, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश माइक्रोइकोनॉमिक वर्सेस द मैक्रोइकोनॉमिक. So microeconomics is the study about the कौन सा मेथड था? Slicing. Slicing means divide the economy into the pieces. Slice means piece. Okay बच्चों, and then they study that in detail. While the macroeconomic they take the whole economy as a lump. Lump मतलब लार, एक छत्र के नीचे सब बच्चों, है ना. तो they are not taking the individual. सारे इंडिविजुअल को एक बैकग्राउंड में लेके आओ and then study in the detail. That is all about the lumping method. So lumping means the aggregate. Okay, slice versus lump. Lump means whole, slice means piece. Okay बच्चों, micro focus on the piece, macro taking the large. Macro analysis deal with the behavior of aggregates. It is a total value of economic variables. Total value, all the variables, income, weather condition, taste, habit, everything will consider. Should use the method of lumping to deal the macroeconomic variables like the aggregate demand, aggregate supply, and national output. Yes, अभी अपने पास चैप्टर है aggregate demand, aggregate supply. I said the aggregate demand. How much the public demand is? The demand made by the government, industry, household,
ऑल सबका हम लोग टाउन काउंट करते बच्चों। एग्रीगेट डिमांड मेड बाय द होल नेशन, ओके, दैट वी विल कंसीडर। ये था बच्चों लंपिंग, ठीक है। जनरल इक्विलिब्रियम, इसका अपोजिट कुछ था पार्शियल इक्विलिब्रियम। माइक्रो इकोनॉमी क्या था बच्चों? पार्शियल। पार्शियल इकोनॉमी मींस इकोनॉमी बेस्ड ऑन सिंगल वेरिएबल्स। पार्शियल में क्या था बच्चों? इकोनॉमी बेस्ड ऑन द सिंगल वेरिएबल्स। इट मींस रेस्ट ऑफ ऑल वेरिएबल रिमेन सेम, लाइक द लॉ ऑफ डिमांड। क्या था बच्चों लॉ ऑफ डिमांड का रूल? अदर थिंग रिमेन सेम, ओनली प्राइस जो इसका डिमांड फ्लक्चुएट होना चाहिए। while मैक्रो में भी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जनरल मींस एवरीथिंग डिपेंड ऑन एवरीथिंग एल्स। हर चीज एक दूसरे पर रिलाय है बच्चों। अब हर चीज एक दूसरे पर रिलाय, ले लो एग्जांपल कोरोना काल। कोरोना का रिलाय, कोरोना की वजह से बीमारी आया, बीमारी की वजह से जॉब शट डाउन हो गए, जॉब शट डाउन हो तो इनकम जनरेट नहीं हुआ, इनकम जनरेट नहीं तो लोग डिमांड नहीं कर रहे मार्केट में, ठीक है। अब मार्केट में जब डिमांड नहीं है तो प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं कर रहा है और लेबर कम होते जा रहे हैं। ये सब एक दूसरे पे रिलाय डिपेंड है बच्चों। वाइल द माइक्रो में ऐसा नहीं था बच्चों। माइक्रो में दे आर नॉट कंसीडरिंग द ईच वेरिएबल्स ऑन टू कंपेयर। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज डिपेंड ऑल द थिंग्स ईच अदर, ओके। हर एक चीज का एक दूसरे पे क्या होता है बच्चों? कनेक्शन होता है, ठीक। दैट इज कॉल्ड वर्ड जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ओके। तो पार्शियल में इट रिलाई ऑन वन वेरिएबल, जनरल मींस it rely on every variables, बच्चों। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस बेस्ड ऑन द जनरल इक्विलिब्रियम, इट डील विद द एंटायर इकोनॉमी एज अ कॉन्टेक्स्ट। जब भी मैं बात करूंगा तो मेरे माइंड में क्या होना चाहिए बच्चों? मैं होल इकोनॉमी को कंसीडर कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर्स। मैं किसी एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी या बात नहीं कर रहा हूँ, ओके। व्हेनेवर मैं पॉलिसी बना रहा हूँ या कुछ सोच रहा हूँ तो मेरा माइंड सेट क्या होना चाहिए? ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी, that is called general equilibrium. So, it studies the behavior of number of economic variables at a time. Micro में क्या था बच्चों? At a time only one variable they considering, okay, and rest of all variable ignore करते थे लोग। But macro में they consider all the variable at a time. एक ही वक्त में सारे variable को एक दूसरे से connected है बच्चों। So that is general equilibrium. So this is the concept that I assume that everything depend on everything in, everything depend on everything in, हर एक चीज एक दूसरे पे रिलाय है बच्चों, ओके। आपको मैंने अभी बोला एग्जांपल, एक बीमारी आया, उस बीमारी ने क्या किया? लोगों में स्केयर किया, लोग जॉब बंद, घर पे बैठने लग गए, जॉब चला गया तो इनकम नहीं है, इनकम नहीं है, डिमांड नहीं हो रहा है मार्केट में, डिमांड नहीं है तो प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं कर पा रहा है, सप्लाई नहीं कर रहा तो आगे ज्यादा जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है बच्चों, ओके। तो अल्टीमेटली दैट इज कॉल्ड जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों। सो देन इनकम एनालिसिस, इसका इनकम एनालिसिस और इनकम थ्योरी कॉल्ड। माइक्रो में क्या था बच्चों? प्राइस थ्योरी, ओके। माइक्रो इकोनॉमी देयर इज अ प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी मींस दे ओनली कंसीडर द प्राइस वेरिएबल्स, ओके, एंड हाउ द फैक्टर्स इन फैक्टर्स प्रोडक्शन विल बी कंट्रीब्यूटेड। तो लैंड, लेबर, कैपिटल था बच्चों। तो लैंड के लिए क्या था? रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट बच्चों, ओके। हियर इनकम थ्योरी बच्चों, हाउ द इनकम विल बी जनरेटेड, हाउ द जॉब विल बी क्रिएटेड, दैट इज ऑल अबाउट द फोकस ऑन मैक्रो पार्ट। सो मैक्रो थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड द इनकम थ्योरी एंड एम्प्लॉयमेंट। सो दे ओनली कंसीडर अबाउट द इनकम, हाउ टू इनकम जनरेट। So macroeconomic analysis explain the what determinant of level of national income and employment. Yes, तो इसका पर्पज क्या है? कंट्री में नेशनल इनकम का लेवल क्या है, हाउ मच जॉब क्रिएट होता है इंडिया में, दैट वी हैव टू कंसीडर इन द इनकम एनालिसिस बच्चों, ओके। एंड देयरफॉर इसका इम्पैक्ट इंडिया में लॉन्ग टर्म या कोई भी कंट्री में, हाउ मच द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट विल बी देयर बच्चों। ये है मैक्रो थ्योरी का पार्ट। देन प्राइस ओरिएंटेड, सॉरी पॉलिसी ओरिएंटेड। पॉलिसी, जब आप बच्चों कोई इंडस्ट्री डालना है या कुछ करना है गवर्नमेंट की पॉलिसी, तो गवर्नमेंट कभी एक आदमी को देख के पॉलिसी नहीं बनाता है बच्चों। दुकानदार एक कस्टमर के हिसाब से पॉलिसी नहीं बनाता है, ओके। दैट मीन द दुकानदार हो या गवर्नमेंट हो, दे नॉट फॉलोइंग द इंडिविजुअल्स, ओके। आप जैसे एग्जांपल ले लो, आपकी गली में कुछ खराब हो गया है, ओके, जाके नगर सेवक को बोलो भाई मेरा गली में वो घर खराब हो गया है, वो एक का काम करने के लिए नहीं आने वाला यहाँ पे, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का जो भी काम है वो एग्रीगेट रहेगा, नॉट द इंडिविजुअल के लिए रहेगा। दैट इज पॉलिसी ओरिएंटेड।
So macroeconomy, according to Keynes, is a policy-oriented science. So you know already the microeconomics ज़्यादातर अल्फा मार्शल का फोर्स है वो कुछ macro it is given by the professor Keynes. Okay, he said that it is a policy-oriented science. Science में तो method system. So macroeconomy help the formulating a suitable economic policy to promote the economy. तो कंट्री की इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ करना है बच्चों, तो macroeconomy helpful to develop the economy of GDP growth of the country. Okay बच्चों, it also helpful to generate the job. It also helpful to control the inflation. अब महंगाई कैसे हुआ बच्चों, सपोज दैट विलेज वर्सेस सिटी. अब यहाँ बच्चों कुछ एग्रीकल्चर होता नहीं सिटी में. ओके, यहाँ प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है, डिमांड इज हाई. विलेज का काम क्या है बच्चों, सप्लाई ज़्यादा आता है, प्रोडक्शन ज़्यादा है. अगर मान लो अगर या तो गवर्नमेंट का काम क्या है, जहाँ पे एक्सेस सप्लाई वहाँ से क्या करो, सिटी लेवल में उसको डिमांड करो. अब जम्मू कश्मीर एप्पल वहाँ ह्यूज प्रोडक्शन होता है बच्चों, तो वहाँ पे 20 रुपये 10 रुपये 15 रुपये किलो को घुसता नहीं है. अब एप्पल को हम क्या कर सकते हैं, शहरों में इसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वही एप्पल लेकर शहरों में आता है तो 100 रुपये 150 रुपये 200 रुपये किलो हो जाता है. तो दैट मीन द विलेज से आपने क्या किया, सिटी में उसको सप्लाई कर दिया. ओके बच्चों, सो दैट इज अ कंट्रोल द इन्फ्लेशन. देन बच्चों मोर रियलिस्टिक. यस, जब आप एक इंडिविजुअल की बात करते हो इट इज अनरियलिस्टिक होता था. तो माइक्रो इकोनॉमी क्या था, बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एग्जाम्पल. बहुत सारे अनरियलिस्टिक कंडीशन होते थे माइक्रो में. मैक्रो में क्या है, एवरीथिंग डिपेंड ऑन एवरीथिंग, हर एक चीज एक दूसरे पर डिपेंड है. तो इसमें कुछ आपको एग्जाम्पन करने की जरूरत नहीं है, ये तो ज्यादा प्रैक्टिकल है. आप सोचो अगर मैं कुछ सर्वे करूँ कोई चीज का, एक आदमी से सर्वे करके आप मान लो अगर किसी मुंबई के बारे में मुझे जानना, मुंबई के बारे में जानना है, तो एक इंडिविजुअल से अगर मैं उसके बारे में पूछूंगा, वी कांट गेट द कंप्लीट आइडिया अनलेस कि सबके साथ सकती है. ठीक, तो माइक्रो इकोनॉमी जो था वो प्रैक्टिकली अप्लाई होता था, और मैक्रो इकोनॉमी इसमें ज़्यादातर वेरिएबल इंक्लूड है. दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट इज अ मोर प्रैक्टिकल, मोर रियलिस्टिक बच्चों. ओके, so it is difficult to study and complicated but it tend to the more real. Yeah, अब सपोज मान लो बच्चों इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, इतना बड़ा कंट्री है, ईच एवरी इंडिविजुअल को स्टडी करना, वहाँ तक जाना बच्चों पॉसिबल नहीं है. इट्स वेरी डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है. बट जब ज़्यादा लोगों तक जाते हैं बच्चों तो आपको नियरर आंसर है. जैसे बुक ले लो बच्चों, आजकल लोग शॉर्टकट में क्या करते हैं, बस थोड़ा सा नोट्स पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन पढ़ हो गया. लेकिन अगर पूरा बुक पढ़ते हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, यस, क्योंकि पूरा बुक पढ़ना है आपको, बट आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा. सेम ऐसे बच्चों माइक्रो इकोनॉमी वन इंडिविजुअल तक है, तब से उससे आपको एग्रीगेट आंसर नहीं मिलेगा. लेकिन मैं ज़्यादा लोगों तक जाऊंगा तभी मेरे मोर आइडिया, मोर करेक्ट आंसर आएगा बच्चों. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड मोर रियलिस्टिक, मोर प्रैक्टिकल बच्चों. सो इंटायर इकोनॉमी इज टेकन इनटू द कंसिडरेशन and that will help for the making the policy. तो जब बच्चों मैक्रो में क्या करते हैं हम लोग, सारे इकोनॉमी की स्टडी करते हैं एक साथ, और that will be helpful for policy making. वाइड स्कोप. माइक्रो में क्या था बच्चों, लिमिटेड स्कोप था, उसके एरिया सर्टेन थे, रिस्ट्रिक्टेड था. मैक्रो में क्या है, ऑल होल इकोनॉमी को कंसीडर करना बच्चों. ओके, माइक्रो में हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रेड का स्टडी नहीं किया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नथिंग, मैक्रो के जॉब क्रिएशन एम्प्लॉयमेंट नथिंग, इन्फ्लेशन डिफरेंस नथिंग, कुछ नहीं. ओनली एज ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के बारे में स्टडी करें. मैक्रो में आपको स्टडी करने के लिए काफी स्कोप है बच्चों, दैट इज अ वाइड स्कोप. ओके, सो मैक्रो कैन स्टडी द फैक्टर्स ऑफ नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, स्टडी द रिलेशन ऑफ इनकम नहीं सब्जेक्ट नेशनल इनकम एंड जॉब. तो नेशनल इनकम की बात करते हैं बच्चों, तो दैट मीन वी हैव अ मोर स्कोप. जब नेशनल इनकम की बात करते हैं, इंडिया ले लो 130 करोड़ की आबादी है, ऑल द इनकम ऑफ द 130 करोड़ पीपल. अब 130 करोड़ पीपल कुछ जॉब एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, कुछ इंडस्ट्री में है, कुछ लोग सर्विस सेक्टर में, अलग अलग फील्ड में बच्चों. देन ऑल वी हैव टू कंसीडर. ओके, देन बच्चों इंटरनेशनल ट्रेड. मैक्रो इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड को कवर करता है, तो हर एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को वी हैव टू कंसीडर. That is helpful for the international trade.
सो वी कैन स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. क्या होता है बच्चों बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट. बच्चों पर आप समझ आपने बैलेंस शीट सुना है? यस, बैलेंस शीट अकाउंट में बैलेंस शीट बनाते तो प्राइवेट कंपनी बैलेंस शीट होता है, गवर्नमेंट जो होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, तो इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है और कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं. जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वी गेटिंग द करेंसी रिसिप्ट, इंपोर्ट करते वी हैव टू पे. इस समय इंडिया का पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है? बैलेंस है कि इम्बैलेंस है? इम्बैलेंस है. हम ज्यादा खरीदते हैं, 100 रुपया खरीद रहे हैं, 40 रुपया बेच रहे हैं, तो 40 का एक्सपोर्ट करें 100 का खरीदे तो भी 60 रुपया का माइनस ना बचे. हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इस समय नेगेटिव है, डेफिसिट में है, लॉस में है. ओके, बिकॉज वी आर इंपोर्टिंग मोर. एंड द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तो इट इज हेल्पफुल टू मेक द सुटेबल पॉलिसी फॉर इंडिया. तो आपको देखना पड़ेगा, मान लो अभी इम्पोर्ट आपको कम करना बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे उसके ऑप्शन इंडिया में प्रोड्यूस करने पड़ेगी ताकि हमको बाहर से इम्पोर्ट ना करना रहे. ओके, दैट इज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंट. इंटरडिपेंडेंट मतलब ईच वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द अदर्स. हर एक वेरिएबल एक दूसरे पे क्या बच्चों कनेक्टेड है और रिलाय है. So macroeconomics take the interdependency between the aggregate economy, income, output, employment, investment, price level, ये सब एक दूसरे पे क्या बच्चों डिपेंड होता है. ओके, so it explain how the change in level of investment will finally change the level of national income. आपको इन्वेस्टमेंट बच्चों, हम जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप इनपुट डालोगे बच्चों आउटपुट आएगा ना. और कम इन्वेस्ट करो तो कम रिटर्न मिलेगा. किसी ने 10,000 रुपये जमा किया बैंक में, तो 50,000 रुपये जमा किया, तो आप सोचो जो 50,000 डाला है तो उसको ज्यादा रिटर्न मिलेगा. तो अल्टीमेटली द इन्वेस्टमेंट, मोर यू इन्वेस्ट मोर यू गेट अ रिटर्न. ओके, और जब ज्यादा रिटर्न मिलेगा तो यू गेट मोर एंड मोर जॉब. एक दूसरे हर एक चीज का एक दूसरे पे डिपेंडेंट, दैट्स व्हाट वी कॉल अवर बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंसी. क्या बच्चों? एंड लास्ट वन है बच्चों डायनामिक साइंस. डायनामिक साइंस इसलिए बच्चों क्योंकि इसके अंदर सब कुछ कवर करता है. ओके ना, ऐसा माइक्रो इकोनॉमी सारी चीज कवर नहीं करता है, बट इट कवर ऑल. सो माइक्रो इकोनॉमी स्टडी द चेंज इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड एनालिसिस ऑफ इकोनॉमी. सो इट हेल्प टू स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमी ओवर अ पीरियड टाइम. और जब आप सब कुछ कवर करते हो तो ओवर अ पीरियड टाइम 10 साल 20 साल में कोई भी कंट्री का ग्रोथ एंड प्रोग्रेस कितना है वी कैन स्टडी अबाउट. बच्चों ये था क्या फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो बच्चों हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक कर लिया, बराबर ना. तो आप लोग क्या करोगे, इसके फीचर्स और दो माइक्रो इकोनॉमिक दोनों को प्रॉपरली स्टडी करोगे. ओके, सो वी कैन नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्टिंग्विश करना है बच्चों. और डिस्टिंग मैं नहीं करूंगा, आपसे पूछने वाला हूँ मैं. सो यू हैव द आंसर ऑफ माइक्रो, वी हैव द आंसर ऑफ मैक्रो. दोनों का आप खुद कंपेयर करो, हो सके तो खुद आप अपना डिस्टिंग्विश लिख के मेरे को सेंड करो. ओके बच्चों, माइक्रो और मैक्रो का डिस्टिंग्विश आप खुद अपना ट्राई करो और मुझे भेजो. किसी बुक से कॉपी मत करना, जस्ट रीड द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों आपको हो गया है. ओके, दोनों को रीड करके उसके डिस्टिंग्विश आप मुझे सेंड करो. ठीक है, रॉन्ग हुआ चलेगा, ठीक है. 4 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट जितना आपसे होता है. अभी आप ही देखो, मैं बोल चुका आपको एग्रीगेट है, उधर पे क्या था बच्चों स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, लंपिंग, देयर स्लाइसिंग. जनरल इक्विलिब्रियम, उधर क्या था बच्चों पार्शियल इक्विलिब्रियम. इनकम थ्योरी, माइक्रो में क्या था बच्चों प्राइसिंग थ्योरी. पूरी 5 पॉइंट है. मोर रियलिस्टिक, वो क्या था बच्चों अनरियलिस्टिक. ओके, वाइड स्कोप, देयर इज अ लिमिटेड स्कोप. 6 पॉइंट हो गए. तो आप खुद उसको स्टडी करके मेरे को माइक्रो और मैक्रो का डिस्टिंग्विश सेंड करो. ठीक है बच्चों.